میری طرف سے آپ سب کو مسیح میں سلام قبول ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے، ہم ایک بچوں کے لیے ہم پڑھنے لکھنے کا انتظام، جو پور چلڈرن ہیں ان کے لیے ہم نے ایک NGO بنا رہے ہیں، گڈ سمیرٹن سوسائٹی پاکستان۔ اچھا، اس پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم اپنے خدا کو یاد کریں گے، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا تلاوت کے لیے کہ پرانے عہد نامے سے زبور 107 کی تلاوت کریں گے، اور کیسر بھائی کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور تلاوت کی رہنمائی کریں۔ ہم کے پاکلام میں سے زبور کتاب زبور 118۔ اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے اور مجھے امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ تیرے احکام پر میرا اعتبار ہے۔ میں مصیبت میں پڑنے سے بیشتر گمراہ تھا، پر اب تیرے قول کا حفیظ ہوں۔ تو نیک اور کریم ہے، مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ مفرور مجھ پر بہتان باندھتے ہیں، پر میں اپنے سارے دل سے تیرے قواعد کو مانتا ہوں۔ ان کا دل چربی کی مانند فرمانبردار ہوگا، مگر میں تیری شریعت سے مسرت پاتا ہوں۔ میرے لیے یہ اچھا ہے کہ میں دکھی ہوں، تاکہ تیرے قوانین کو سیکھوں۔ میرے لیے تیرے منہ کی شریعت اور سونے اور چاندی کے 1000 سکوں سے بھی افضل ہے۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جا پر کام کی برکت۔ خدا کا شکر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انیل بھائی کے ساتھ پرستش میں آگے بڑھیں گے اور گیت گائیں گے۔ ہم تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ وڈتے ویلے شفقت تیری، وڈتے ویلے شفقت تیری، رات دے ویلے رحمت تیری، رات دے ویلے رحمت تیری، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ دستار ایک ساز بنا کے، دستار ایک ساز بنا کے، مین بربت خوش رنگ بجا کے، مین بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ اپنے کما تو یا ربا، اپنے کما تو یا ربا، مینوں تو خوش حال کیتا،
میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں تیرے ہاتھ دیاں کاراگریاں بے خوشی دے ساز بجاواں بے خوشی دے ساز بجاواں کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو جھکائیں اور اس سارے پروگرام کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمارے اس عزم کو پایا تکمیل تک پہنچائے. ہم دعا کے لیے قابل احترام عنایت الدین صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. عنایت الدین صاحب. آپ سب کو میری طرف سے سلام. ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کے سامنے جو آپ کا اغراض و مقاصد ہیں آپ نے وہ رکھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ اس سوسائٹی جو کہ ہم خیال کے مطابق کام کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے اور خداوند یسوع سے آپ کو برکتوں سے مالا مال. باپ اور بیٹے جس کے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے کرداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہم بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا. آمین. ہم دعا کریں. قدوس قدوس آسمان اور زمین کے خالق و مالک آج جتنے یہ بھائی ممبران سوسائٹی کے بھی طور پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان کا مین مقصد پبلک کو خدمت کرنا ہے. پہلے یسوع ان کے ذہنوں کو روشن کر ان میں وہ جذبہ محبت پیدا کر جو تو نے ہم سب کو دیا. پہلے یسوع ان کی محنت پر برکت دے اور آج یہ عہد کریں کہ ہم سچے دل سے تیرے پاک کلام کے مطابق اس سوسائٹی کو چلانے کی کوشش کریں گے. ان کی سوسائٹی میں برکت دے جیسے کہ یعقوب کا خط اس کا 5 بار اس کی 13 سے 16 آیت میں یوں لکھا ہے اگر کوئی مشکلات میں ہے تو دعا کرے اگر خوش ہے تو خداوند کی حمد و ثنا کرے اور اگر کسی گھر میں بیمار کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف ہے تو سچے دل سے سچے ایمان سے مضبوط ارادے سے پیارے یسوع سے دعا کریں وہ شفا پائے گا. اس وقت ہم پیارے یسوع ہم اس سوسائٹی کے لیے میں تو سے منت کرتا ہوں کہ تو ان کو تندرستی بھی دے ہمت اور طاقت بھی دے تاکہ یہ اپنے پروگرام کو جلد از جلد ترقی کی منزل کی طرف جا سکے. پیارے یسوع ان تمام بھائیوں کو برکتوں سے مالا مال کر ہماری چھوٹی دعا کو سن قبول کر اپنے پیارے یسوع ناصری کے نام سے آمین. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انیل بھائی کے ساتھ ایک اور ضمور گانا چاہیں گے.
सदाती करे रहमत सारे रब दी सदाती करे रहमत सारे रब दी सदाती करे रहमत सारे रब दी करो रब दी शुक्र गुजारी करो रब दी शुक्र गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी नेकी निकली है उस तो सारी सदाती कर है रहमत साढ़े रब दी सदाती कर है रहमत साढ़े रब दी काश इसराइल बोले काश इसराइल बोले ओदी उसत विच मुँह खोले ओदी उसत विच मुँह खोले सदाती कर है रहमत साढ़े रब दी सदाती कर है रहमत साढ़े रब दी हारून दे घर दे सारे हारून दे घर दे सारे काशा खन मार किनारे काशा खन मार किनारे सदाती कर है रहमत साढ़े रब दी सदाती कर है रहमत साढ़े रब दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत करूंगा मोम साहब आए और पुराने अहतनामे से ज़बूर 107 उसकी तिलावत करें। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम पुराना ऐतनामा ज़बूर 7 उसकी 1 से लेके 7 आयत तक। मेरा दिल मुस्तकिल है, ऐ खुदावंद मेरा दिल मुस्तकिल है। मैं जागूंगा, हमद सराई करूंगा। जाग ऐ मेरी जान, जागो ऐ बरबत और सितार। मैं नूर के तड़के को जागूंगा, ऐ खुदावंद मैं कौमों में तेरी तारीफ करूंगा और उम्मतों में तेरी हमद सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत फलक तक है और तेरी सदाकत बादलों तक अजीम है। ऐ खुदावंद तू अफलाक पर सरफराज हो, कुल जहान पर तेरा जलाल हो, ताकि तेरे महबूब रहाई हासिल करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिस मकसद के लिए हम जिस अज़म के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसका अनवान है गुड समैरिटन सोसाइटी पाकिस्तान, empower the women and give the education to the poor children। इसके मीनिंग है गरीब बच्चों की एजुकेशन और औरतों की बका। और इस मकसद के लिए मैं ख्यालात के लिए इजहार करने के लिए जो हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर हैं एहसान यूनुस आए और आके अपने ख्यालात का इजहार करें। एहसान यूनुस, आपकी भरपूर तालियों में एहसान यूनुस। नसीब में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ नवीद भाई का कि जिन्होंने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम के लिए। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। और मतलब प्रोग्राम ये है कि हम गरीब बच्चों को इस सब मिल के मतलब जितने भी हमारे क्रिश्चियंस बच्चे हैं या क्रिश्चियंस के अलावा जो मुस्लिम भी हैं या पुअर
बच्चे हैं, हम सब मिल के तो उनकी हम मदद करें। जिस तरह हमारे आजकल बच्चों को, नौजवानों को तालीम का नहीं पता, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, एजुकेशन नहीं देते। यहाँ तो कोई रुकावट आ जाती है, फाइनेंशियली तौर पे वो गरीब होते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने एक सोच ये नवीर भाई की है कि हम मिल के इन बच्चों की हेल्प करें। अगर देखा जाए बाइबल में, तो बाइबल भी इस चीज़ पे हमें जवाब देती है कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो सबसे पहले उसे एजुकेशन दी। उसे कहा कि तू ये जानवर जो तेरे खाने पीने वाली चीज़ें, तू इनका नाम रख। तो खुदा ने उसे एजुकेशन दी। फिर जितने भी हमारे अंबिया कराम आए हैं वो सब को ही खुदा ने एजुकेशन दी। उनके जहनों के अंदर वो विजन डाला कि तुम किस तरह मेरे नाम की परस्तिश करो, मेरे नाम उनको बताओ कि यहोवा भी एक खुदा है। जब वो मिस्र से निकले इसराइली तो उनको बताया। फिर जब वो मुल्क किनान तक गए तो उनको सारी चीज़ों, हर चीज़ का बताया। उनको एजुकेशन दी हराम और हलाल में, उनको बताया। ये एजुकेशन एक तो मजहबी तौर पे थी, और दूसरा अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जब दुनिया में आए, यीशु मसीह, तो उन्होंने पहले अपने शागिर्दों को तालीम दी, उनको एजुकेशन दी। 3.5 साल मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को तैयार किया, उनको एजुकेशन दी। ये नहीं कहा कि बस तुम जाकर अंजील की मुनादी करो, नहीं, पहले उनको एजुकेशन दी, उनको ट्रीट किया। फिर जाके शागिर्द जो थे वो अंजील की मुनादी करना शुरू हो गए थे। इसी तरह हम लोग एक सोच लेके आए हैं कि हम लोगों को एजुकेशन की तालीम दे, मसीही तालीम दे। अगर तो हमारे क्रिश्चियन बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि हम उनको जो माशरी तालीम तो देंगे, साथ में हम उनको एक मजहबी तालीम भी देंगे ताकि हमारे नौजवान तैयार हों। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ ही ये है जो हम लोगों ने मिल के ये एक सोच को पैदा किया है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि 2 कौमी नज़रियात थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक नज़रिया रखा था मुसलमानों के लिए कि उनको एजुकेशन, नहीं तो वो अंग्रेज़ों का किस तरह मुकाबला कर सकते थे। उन्हें तो बोलना नहीं था आता, वो कहते थे हम लोग तो इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं। लेकिन क्या था कि उनकी सोच को बदला था उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। इसी तरह आज हमारे क्रिश्चियंस के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे अदारों पे ताले लगे हुए हैं, हमारे अदारों को बंद किया जा रहा है, हमारे अदारों जो है वो कोई कब्जा कर रहा है, हमारे जो माफिया लोग हैं वो हमारी चीज़ों को बेच रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। सिर्फ हम लोग सोए हुए हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ों का पता ही नहीं है। तो ये है कि हम लोग किसी एक ने या किसी ना किसी ने तो उठना है, चाहे वो मसीही उठे, कोई भी खुदा के जो बंदे हैं वो उठें, ताकि हम अपने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने लोगों की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि हम एजुकेशन पे ही काम करें। जिस तरह क्रिश्चियन बच्ची है, हम सब मिलके उसकी शादी का बेड़ा उठाएं ताकि भाई हम उसका कोई भी उनकी हेल्प करें। ये हमारा विजन है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई गरीब है जिसके घर में, जो अपने घर में अनाज के लिए परेशान है, हम सब मिलके थोड़ा सा भी लेके, ताकि उसका वो एक टाइम की रोटी तो अपने गुजारा कर सके, ना कि वो किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए। तो ये हमारी सोच है। आप लोगों का साथ चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो, तो इस प्रोग्राम को, इस सोसाइटी को हम सपोर्ट करें। ठीक है, तो आप सबका शुक्रिया जो आप लोग इधर तशरीफ़ लेके आए हैं। तो मैं नवीद भाई का शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इधर आके आपके सामने नज़रिया पेश करूँ। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपकी भरपूर तालियों में दावत देंगे। एसएम गिल साहब आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एसएम गिल साहब, कम ऑन द स्टेज। गुड इवनिंग। सॉरी मैं लेट हो गया, आपको वेट करना पड़ा। बाकी खुदा का शुक्र है कि ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। इसके लिए जो गेट टुगेदर हुए हैं, क्योंकि पहले हमने ये प्रोग्राम रखा था, मगर अनफॉर्चुनेटली मिस्टर मून जो है हमारे कलीग, उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन हो चुका। मगर खुदा का शुक्र है कि ये दोबारा हमने आज जो है ये प्रोग्राम रखा। तो मैं शुक्र करता हूँ आप सबका, और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने ये टाइम निकाला ताकि
हम ये गेट टुगेदर का प्रोग्राम जो है दोबारा इसको स्टार्ट कर सकें। आज जो हमारा मकसद है इस सेशन का वो ये है कि हमने जो ये एक NGO जो स्टार्ट की है गुड समैरिटन सोसाइटी के हवाले से, इसके बारे में हम एक तो आपसे बताने लगे वाले हैं कि ये क्या है और ये किस लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, खुदा ने जो ये हमारे दिलों में नज़रिया डाला है ताकि हम अपनी मसीही कौम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तरह की ये सोसाइटी जो है उस पर काम करना चाह रही है। उनमें पहला जो है वो हम एजुकेशन पे जो है वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हम जो एम्पावर्ड करना चाह रहे हैं अपनी फीमेल्स को। और तीसरा जो है हम वॉइसलेस जो लोग हैं, पीपल है, उनकी वॉइस बनना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एजुकेशन पे मैं आपको इस जो NGO है उसका विजन बताने जा रहा हूँ कि ये NGO किस तरह काम करना चाह रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन हम अपनी मसीही जो लोग हैं अब उसके लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन आपको पता है कि हमारी मसीही लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो हमारी इशू आ जाता है वो हमारी लोग जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाते लोग अपने बच्चों को, क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अपने बच्चों को आगे तक लेके जा सके। तो हमने ये डिसाइड किया है, इनिशियल स्टेज हमारी जो है वो एजुकेशन पे है कि एजुकेशन में हम बच्चों को, ठीक है, और स्टार्टिंग हमने जो है वो इससे किया है कि हम बच्चों को स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड करें, बच्चों को जो है ना उनकी फीसिस वगैरह जो है, उनके बैग्स वगैरह, इनिशियल हमने ये स्टार्ट किया है। देन अगर जैसे ही हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा हम उनकी फीसिस और उनके आगे जो है मसले मसाइल जो है उन पर जो है वो काम करेंगे। सेकंड जो है वो फीमेल्स को एम्पावर्ड करने के लिए हमने कहा है, क्योंकि हमारे मुआशरे में जितनी भी फीमेल्स हैं वो या तो अनएजुकेटेड रह जाती हैं, अनएजुकेटेड रहने की वजह से वो घरों पे, लोगों के घरों पे काम करने जाती हैं, क्योंकि हमारी यंग लेडीज़ जो हैं जब वो लोगों के घरों में जाती है तो आपको पता ही है कि वो किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो हमने ये सोचा है कि ये यंग लेडीज़ के लिए हम उनको स्किल करने के लिए, मतलब जैसे फीमेल्स के लिए हम उनको पार्लर्स के जो है उनका प्रोग्राम इसके लिए स्टार्ट करेंगे। हम उसकी जितने भी ये फीमेल्स के जो है जैसे ये सिलाई कढ़ाई का काम है ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हम मतलब ऐसा ये हम करने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेप ये जो है हमारा फीमेल्स की इस पे स्किल पर्सन्स पे होना होगा। तीसरा जो है वो हम जो है वॉइसलेस पर्सन जो है, जैसे कि ये जो भट्टे पे हमारे लोग जो है अक्सर काम करते हैं और उन्होंने लोगों से कर्जा लिया होता है, 20-30 हज़ार रुपया, लाख रुपया कर्जा ले लिया और वो सारी उम्र अपनी पूरी फैमिली के लिए वहाँ निकाल देते हैं, ना वो कर्जा उतार सके ना कुछ कर सके। बेसिकली ये चीज़ हम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें और उनको, उस फैमिली को जो उधर फंसी हुई हैं उनके लिए हम जो है ना ये काम कर सके, ताकि वो हम अपने मसीही बरादरी जो है वो उसको वहाँ से निकाल सके। ये जो नज़रिया जो हमारे दिलों में आया, ये मुझे याद है आज भी, वो दिन संडे था जिस दिन नवीद कार्डिक आईसीयू में होता था और उसने वो एक पेज पे लिख के आया कि भाई ये हम जो है वो करना चाह रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो इसने गुड समैरिटन नेशन के नाम से जो है ना ये सोसाइटी स्टार्ट की। तो मैंने कहा कि यार अच्छा है कि दुनिया में जब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग, जितने भी पैगंबर जितने भी आए हैं, खुदा ने उनके दिलों में ये चीज़ें डाली। तो इसी तरह खुदा ने हमारे दिलों में भी, बल्कि नवीद के वसीला से हमें ये एक सोसाइटी खुदा ने ये जो NGO जो है वो देने का सरबंद बनाया है। तो लिहाजा हम इस पे ये काम करना चाह रहे हैं। तो आप सब भाई बहन भाइयों की वजह से ये जो
हम ये NGO है वो चलाएंगे, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो लिहाजा आप हम सब के साथ रहें और अपने दिए में से हमें कुछ दें फंड्स, ताकि हम इस NGO को आगे तक लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुड समैरिटन सोसाइटी पाकिस्तान के चेयरमैन उनको दावत दूंगा, वो आपकी भरपूर तालियों में नवीद के एजाज आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नवीद के एजाज। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जैसा कि मेरे दोस्तों ने बड़े ही शानदार अल्फाज में बयान किया और हमारी इस NGO का जो एजेंडा था, जो उसका मौक़िफ़ था, वो आप सबके सामने बयान किया। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है मिशन, मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा बताऊं कि जो हमारा गुड समैरिटन सोसाइटी पाकिस्तान है, इसका जो मिशन है वो मिशन है टू सर्व द वॉइसलेस। वॉइसलेस यहाँ से हमारी उन लोगों की मुराद है जो हमारे मुआशरे के अंदर मुतवस्त तबका है। जैसे भाई ने पहले तज़किरा किया कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिन तक कोई नहीं पहुँच सकता। हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, इस आलमगीर कायनात के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे मौज़ूआत पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हर शख्स जो है वो कोई ना कोई अच्छी चीज़ का जो है वो इंतखाब करता है। तो मेरे दिल में ये खुदा ने बात जो है वो बड़ी देर से डाली थी, लेकिन बाइबल का एक फ़ैसला है, बाइबल के अंदर बड़े ही शानदार अल्फाज में लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। ये मेरे दिल के अंदर बात बड़ी देर से पनप रही थी, लेकिन इसको मैं बाहर किसी लायक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पा रहा था। तो मैं एक दिन गाड़ी का इसमें बैठा हुआ, तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं किस तरीके से बाहर निकालूं, किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि गरीब जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, इस माशरे के अंदर वो रहते हुए, अब उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी भी ज़िंदगी की हसरतें होती हैं, लेकिन सोर्सेज नहीं होते, इनकम नहीं होती, पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन याद रखिएगा कि इंसान को जब खुदा बरकतों से नवाजता है तो इस बात को हमेशा अपने जहनों में रखिएगा कि खुदा का कोई ना कोई मकसद होता है। खुदा ने अगर किसी शख्स को बरकत दी है तो वो ऐसे ही उसको नहीं दी गई, उसका हिसाब लेना है। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है किसी भी वसीला से, तो आप सबका, हम क्रिश्चियनों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उस फ़र्ज़ में से कुछ चीज़ निकालें खुदा के लिए। वो दाइया की हो सकती है, वो ऑफरिंग्स हो सकती हैं, वो डोनेशन हो सकती है, वो खुदा के लिए टाइम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक दुनिया मसीहत के बहुत ही अजीम माने साइंसदान गुजरे जिनका सभी ने नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कहते थे कि वी लिव फॉर अदर्स एंड कंट्रीब्यूट समथिंग टू देयर हैप्पीनेस, कि हम इस दुनिया में जीते हैं दूसरों के लिए ताकि उनकी खुशी के लिए कुछ काम कर सकें। ठीक है, इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ, दुनिया के अंदर एक और शख्स गुजरा है, साउथ अफ्रीका का सदर नेल्सन मंडेला। आप सबों ने बड़ा नाम सुना होगा क्योंकि हम एजुकेशन जो है वो हमारा NGO का मेन टारगेट है, मेन मकसद है कि हमने एजुकेशन को एलिवेट करना है, लोगों को ऊपर लेके आना है, अपनी कम्युनिटी को ऊपर लेके आना है। तो नेल्सन मंडेला का एक बड़ा कोट किया जाता है, वो कहता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन देखें एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा वेपन है जिसके जरिए से हम दुनिया को हासिल कर सकते हैं, दुनिया को अचीव कर सकते हैं, हालात को बदल सकते हैं, इकोनॉमीज को बदल सकते हैं, मुल्क के हालात को बदल सकते हैं, और सबसे बढ़ के अपने जो माशरे की तरक्की है उसमें हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसी तरह मैं लास्ट एक और कोट करूंगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक औरत है जो उनकी प्रेसिडेंट है, उसका नाम है ड्रू फॉस्ट। वो क्या कहती हैं एजुकेशन के बारे में कि वी एजुकेट वुमेन बिकॉज इट इज स्मार्ट, we educate women because it is smart, then
We educate women because it changed the world. اگر آپ عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ پورے معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے. جب ہم عورت کو امپاورڈ کریں گے, اس کو اس کے حقوق کی طرف لے کے جائیں گے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ ایجوکیشن حاصل کریں, تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تبدیلی لے کے آئے گی, اپنے گھر کو بدلے گی, اپنے گھر کے اندر خوشحالی لے کے آئے گی, اپنے گھر کے اندر ترقی لے کے آئے گی ایجوکیشن کی وجہ سے. پھر اس کی جو ترقی ہے وہ کیا کرے گی, معاشرے کے اندر اپنا حصہ ڈالے گی. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے غریب بچوں کی تعلیم کا. ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. تعلیم سے مراد کہ جیسے بھائی نے بڑے شاندار الفاظ میں پہلے بیان کیا کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں وہ اکثر انکم کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے. مجھے پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی کے جو سب سے زیادہ, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایج کے کہہ سکتے ہیں یا اسمارٹ لوگ کہہ سکتے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے نرسز. نرسز ہمارے پاکستان کے اندر بڑے خوشحال سمجھے جاتے ہیں اور ہیں, اسمارٹ سیلریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں. اب ہم اس سے نیچے والا جو طبقہ ہے, لوور مڈل کلاس, ان کی طرف چلے جائیں تو ہمیں بتاتے ہوئے تھوڑا برا لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے گھروں میں کئی دفعہ رات کا کھانا نہیں پکتا, ٹھیک ہے, کئی دفعہ آٹا نہیں ہوتا, کئی دفعہ چینی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لوازمات ہیں, ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو گیو دا ایجوکیشن ٹو دا پور چلڈرن. اس کائنات کے اندر, اس دنیا میں جتنے بھی بھائی یا جتنے بھی لوگ آئے ہیں, ان کو تعلیم دینا ہمارا فرض بنتا ہے. اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے, آپ کو برکت دی ہے, آپ کو برکت دی ہے, تو خدا کے مطابق جھکیں, اس کے عرش بری کے سامنے جھکیں اور سوچیں کہ خدا آپ سے کیا مانگ رہا ہے. میری زندگی کا مقصد ہے, آپ کی زندگی کا مقصد ہے, آپ کی زندگی کا مقصد ہے, آپ کی زندگی کا مقصد ہے. خدا نے آپ کو زندگی دی, آپ کو سانسیں دی, آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جب خدا ہمارے اس مقصد کو پورا کر دے گا تو انسان کی جان اس جہاں سے رحلت کر جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے آپ سب کی ڈونیشنز کی, آپ سب کی آفرنگز کی ضرورت ہے, تاکہ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہیں گے, لوگ ٹونٹ بھی کریں گے کہ یہ مطلب ایک کھانے کا بہانہ ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہمارے ملک کے اندر ایسی باتیں پنپتی ہیں, جنم لیتی ہیں. لیکن میں نے پہلے دن سے اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ نوید, چاہے طوفان آئے, چاہے جو کچھ ہو, آپ نے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. جب کوئی بھی شخص اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا تو وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اور جو شخص اپنی منزل کے آگے جھک جاتا ہے, رکاوٹوں کے آگے جھک جاتا ہے, لوگوں کی باتوں کے آگے جھک جاتا ہے, تو وہ شخص کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. تو میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب نے مجھے اور اس این جی او کو, اس سوسائٹی کو, ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور جب خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے دل کو کھولے, تو آپ اس کے لیے ڈونیشنز, آفرنگ, جو کچھ بھی ہو آپ ہمیں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور ہماری اس سوسائٹی کے لیے دعا کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. آخر میں ہم گڈ سمیرٹن سوسائٹی پاکستان کے لیے دعا کریں گے اور مقابل احترام جناب آصف حبیب صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. آصف حبیب صاحب, آپ کی بھرپور تعلیم ہے. آصف حبیب صاحب آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں. شکر کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے کہ ہم تیرے حضور جھکیں, اس موقع کے لیے خداوند, میرے بھائیوں کے لیے جو انہوں نے ایک مقصد اور ایک ایم کو اپنے سامنے رکھا ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے خداوند وہ بھرپور تیار ہے اور دوسروں سے بھی مدد چاہتے ہیں. ہم سب کو خداوند ہمت طاقت توفیق دے کہ ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں. خداوند یسوع مسیح, اور جو سربراہ ہے خداوند, میں چاہتا ہوں خداوند ان کو اور تو ترقی دے اور ان کے ذہنوں کو کھول, تاکہ اچھے طریقے سے خداوند لوگوں کے جہاں جہاں بھی جن لوگوں کو خداوند ضروریات ہیں ان کی ضروریاتوں کو پورا کریں. خداوند سب کی ضروریاتوں کو خداوند تو ہی پورا کرتا ہے, لیکن انسان جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہمت کرتا ہے تو سیدھا تو ہی بن جاتا ہے. خداوند وہ ہر طرح کی مدد کو فراہم کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح, آج کے اس دن کے لیے شکر کرتا ہوں جتنے حضور تیرے جھکے ہیں خداوند صاحب کو خاندانوں سمیت بڑی برکتوں سے نواز.
खुदावन तो हमें सबको संभाल के रख, सफ़र में आने में तूने बड़ी मतफाज की, जाते हुए बड़ी मतफाजत करना इस घर में जहाँ हम बैठे हैं खुदा, उस घर में बरकत देना खुदावन। इस भाई कैसर भाई को और उसके वालदैन, उसके बहन भाइयों को, सबके लिए दुआ करता हूँ, सबको बड़ी बरकत देना खुदावन, जिनके वसीला से हम यहाँ सब मिल के बैठे हैं खुदावन। जब वापस जाए तो हमारी बड़ी मतफाज करना, और खुदावन नवीद भाई, शायद भाई और भी जो भाई हमारे साथ हैं जो इस टीम को लेके चल रहे हैं, इन सब के लिए तेरे से दुआ करता हूँ खुदावन, इनको भरपूर तरक्की दे खुदावन। ये सब कुछ तेरे प्यारे और मीठे जलाली यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रोग्राम के आखिर में हम कैसर भाई और उनकी फैमिली के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए, और हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। चलिए जी, अभी आप